تو ریپ کی سزا کدھر ہے بھائی؟ اچھا تو اس آیت میں کیا سزائیں نہیں ملی آپ کی؟ فاحش تھا زنا کی ہے بھائی، بتا رہا ہوں نا، زنا کی ہے. ہاں، بڑی بری عورتیں جنہیں نکاح کی امید نہ رہی ہو اگر اپنے کپڑے اتار کے رکھیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں. واہ! اور یہ کہتے ہیں اسلام میں زنا کی سزا. کیا بکواس لگائی ہوئی ہے کب سے؟ 2 گھنٹے ہو گئے مجھے سنتے ہوئے. آپ نے غلط پڑھا. او بھائی جا یار، یہ 2025 تک قرآن میں تعریف کر رہے ہیں لوگ. عجیب مسلمان ہیں. قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے. کوئی حدیث دکھا سکتے ہیں آپ مجھے کسی صحابی کو ریپ کی سزا ملی ہو؟ کبھی کوئی حدیث دکھا سکتے ہیں آپ مجھے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، چلو حدیث میں بھی کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس پہ کسی صحابی کو ریپ کی سزا ملی ہو. سزا نہیں ہے، ریپ حلال ہے. آپ کے یہاں سور بھی الاؤ ہے، شراب بھی الاؤ ہے، بچی بازی بھی الاؤ ہے، بچہ بازی بھی الاؤ ہے. اس سے کھلا مذہب کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ سمیر بھائی آپ مجھے بتاؤ، اتنا براڈ مائنڈیڈ مذہب. مولوی جو بچہ بازی کرتا ہے مدرسے میں، اگر اسے پتا ہو کہ گناہ ہے تو وہ نہ کرے بھائی. اس کو لگتا ہے کہ گناہ نہیں ہے، اس کے پاس فتوے موجود ہیں کہ اس سے عاجزی ٹوٹتی ہے. کہ مدرسوں میں جن بچوں کی تشریف ماری جاتی ہے، تشریف مروانے سے عاجزی آتی ہے. ہے بھائی، یہ ان سچ کے بات یہی ہے، ہے، صحیح کہہ ان رہے کے ہو. یہی ہے، کہہ رہے بچہ بازی کرو، بچے کی لو، اور اس کے بعد بچہ جب بڑا ہو کے مولوی بن جائے وہ اگلے بچے کی لے، اور یہ سائیکل چلتا رہے. تو اس سے مسلمانوں میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں مسلمان. اس سے ہمبل رہتے ظاہری ہیں. سی بات ہے، جس کی آپ نے ماری ہے وہ سر اٹھا کے تھوڑی چلے گا، ساری زندگی ڈاؤن ٹو ارتھ ہی رہے گا وہ. ارے یار وہ ایک وہ گنگوئی ہے، راشد علی گنگوئی، اس نے بھی لکھی بھائی اپنی کتاب میں. Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. اچھا وقاص بھائی، آج ہم بات چیت کر رہے ہیں ایمان کے موضوع پر، ایمان کے اوپر. تو آپ گفتگو کرنا چاہیں گے ایمان کے بارے میں؟ میں اتنا بولوں گا جتنا مجھے جانکاری ہے. ظاہر سی بات ہے، میں بھی اتنا ہی بول سکتا ہوں جتنا مجھے نالج ہوگی. اس سے زیادہ تو اگر کوئی بھی بولے گا جتنی اس کو نالج ہے تو اس کے بہت زیادہ امکان ہے وقاص صاحب کہ وہ غلط ہی بولے گا. جی جی، تو ایمان کی تعریف کیا ہے وقاص بھائی؟ پہلے تو تعریف بتائیں. ایمان غیبیات پر ایمان لے کر آنا. جی جیسے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. ہم نے قیامت کے دن کو نہیں دیکھا. نہیں، وہ جو جہنم ایمان اور مفصل آپ بتا رہے ہیں اس پر تو آپ کا ایمان ہے، وہ تو میں سمجھ گیا ہوں. 6-7 چیزوں پر آپ کا ایمان ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایمان ہے آپ کا ان چیزوں پر، وہ ایمان کیا ہے؟ اس ایمان کی تعریف بتائیے. کیسے مانگے؟ میں نہیں سمجھا. ایمان کی ڈیفینیشن بتانی ہے آپ کو. ایمان کہتے کس چیز کو ہے؟ ایمان ایمان کس پر لانا ہے وہ نہیں بتانا، ایمان کہتے کس کو وہ بتانا ہے پہلے. ایمان کا یہی تو مجھے جتنا جانکاری یہی ہے کہ غیبیات پر ایمان لے کر آنا، اس پر کھڑا ہونا کہ اگر مجھے کچھ معلوم بھی نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ایمان لے کر آنا. جیسے اللہ نے بتایا اچھا، غیبیات پر ایمان جو آپ کو لانا ہے وہ کس کی ذمہ داری پہ لانا ہے؟ جہاں ہمیں صحیح خبر ملی اس خبر کے ذریعے ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا ہے. یہ خبر جی، ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس سے اور یہ خبر آپ کے پاس کس کے صحیح ذریعے ہے. پہنچا ہے؟ یہ خبر ہمارے پاس اللہ کی طرف سے پہنچا ہے کتابوں کے ذریعے اور رسولوں کے نہیں، ذریعے. نہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نہیں پہنچا. اللہ کے پاس سے تو یہ کسی اور کے پاس پہنچا، پھر اس سے آپ کے پاس پہنچا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے آپ کے پاس نہیں آیا ہے. کہا نا اللہ کے فرشتوں کو دیا. وہی فرشتوں نے جو بشر انسان ہے اس کو دیا، ان کے ذریعے ہمیں پہنچا. کون ہے وہ بشر جس کو فرشتوں نے دیا؟ بشر انسان ہر دور میں نبی گزرا، ہر قوم میں نبی، گزرا. نبی، جی، یہ اور ٹھیک. تو ان شارٹ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی خبر پر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں، رائٹ سر؟ جی کس کے بھروسے پر؟ کتابوں کے بھروسے پر جو اللہ کی طرف سے کتاب اتر چکے ہیں. نہیں، اللہ تو ہے ہی اسی نہیں نا آپ کے میرے کانٹیکٹ میں. دیکھیں بات سمجھیے، آپ کے میرے کانٹیکٹ میں اللہ نہیں ہے، نہ آپ کے میرے کانٹیکٹ میں فرشتے ہیں. ہماری جو ملتی ہے جا کر کے خبر، جو اینڈ ہوتی ہے ہماری، وہ ہوتی ہے نبی پر. آگے نبی سے آگے کا جو معاملہ ہے، نبی سے آگے کا جو سلسلہ ہے، وہ صرف نبی تک محدود ہے، وہ ہم تک نہیں ہے. ہمارا سلسلہ نبی تک جا کے رکتا ہے. تو آپ کس کے بھروسے پہ ایمان لا رہے ہیں؟ نبی کے بھروسے پہ، رائٹ وقاص بھائی؟ اس کے بھروسے. لیکن اس نے ہمیں بتایا کہ مجھے خبر کہاں سے ملا.
एग्जैक्टली तो उसने बताया, उसके बताने पर आप यकीन कर रहे हैं, उसी को ईमान कहते हैं। जी हाँ, तो अब आप सही जगह पर आ गए काफी घूम फिर करके। अब मैं शॉर्ट में आपके लिए कर देता हूं। तो नबी की दी हुई खबरों को नबी के एतमाद पर, नबी के भरोसे पर हक और सच जानने का नाम ईमान है। राइट, जी यही जी शुक्रिया। तो ये है सर तारीफ ईमान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनाब अली वकास साहब, नबी ने अगर कोई खबर दी आपको और आपने उसको सिर्फ नबी के एतमाद पर सच माना, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको नबी ने खबर दी। आपको और हमें तो नबी ने खबर नहीं दी। आपको हमें ये खबर जो पहुंची है वो उन बशर के जरिए पहुंची है जिन बशर को नबी के जरिए खबर पहुंची थी। तो अब आप ये बताइए, इसकी क्या गारंटी है कि जो खबर आप और हम तक पहुंची है वो खबर नबी की ही है, किसी और ने नहीं दी, नबी नहीं दी है? नहीं, ये तो बात ये है कि हर कौम में अल्लाह नबी और रसूल भेजता था, तो उसके साथ सहीफी और किताब भेजता था। लेकिन जी आखिर में अल्लाह फाइनल कर दिया कि जो कुरान है ये आखिर किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगा। तो ये भी अल्लाह के रसूल ने लेकर आया और हमारे तक पहुंच गया। और हम देखते हैं इसको, कुरान को देखते हैं कि ये क्या बशर का किताब है या खालिक कायनात का है। क्या जो बशर इस तरह लिख सकता है कलाम, या इस तरह बात कर सकता है कि मेरे ये आसमान और ज़मीन और पहाड़ें बनाया बशर? नहीं कर सकता है। ये कोई खालिक का बताया हुआ कलाम है। तो इसी के ऊपर हमारा ईमान है। इसमें जो सब कुछ है, यही कि अल्लाह कहते हैं कि ये यकीनी है और सच्चा है। देखिए वकास खान साहब, बात ऐसी है कि बशर ऐसी बात कर सकता है कि या नहीं, इसका बहुत सीधा सा जवाब यह है कि जी हाँ, बशर भी ऐसी बात कर सकता है, लेकिन उसमें मसलाहत ये पैदा हो जाएगी कि जब बशर ऐसा कोई दावा करेगा तो बशर से सीधा सीधा मुतालबा किया जाएगा कि आप साबित करो कि ये जो आप बात कर रहे हो वो सही है। अगर आपने कायनात को बनाया है तो आप कायनात की कोई भी एक चीज अभी हमारे सामने पैदा करके दिखाओ। तो बशर जो है वो काम करने से नाकिस है, आजिज है, वो काम बशर नहीं कर सकता। और ये बात बशर बहुत अच्छे से जानता है कि वो ये काम कर नहीं सकता। और बशर ये भी जानता है कि जैसे ही वो कायनात को बनाने का दावा करेगा तो लोग उससे मुतालबा करेंगे। इसलिए ये काम जो है कि करने का दावा कोई बशर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन यही सेम सिचुएशन जो है वो अल्लाह के ताल्लुक से भी है। अल्लाह भी ये खुद आकर के साबित नहीं कर सकता है कि ये कायनात उसने बनाई है। ये भी दावा बशर ही करता है कि ये कायनात अल्लाह ने बनाई है। लेकिन क्योंकि अल्लाह मौजूद नहीं है और अल्लाह से गुफ्तगू, बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हो सकती है, या कोई इंसान उससे मुतालबा नहीं कर सकता है, इसलिए ये मामला जो हैं वो पिछले हजारों साल से लगातार ऐसे ही चले हुए आ रहे हैं। और इनको कभी चैलेंज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अल्लाह मौजूद नहीं है। अगर अल्लाह मौजूद होता तो फिर तो उसको कह दिया जाता कि अगर आपने कायनात बनाई है तो कोई एक चीज बना करके दिखाओ। लेकिन जब अल्लाह मौजूद ही नहीं है, अल्लाह पर्दे में है, तो फिर कोई बशर उसको ये चैलेंज कर ही नहीं सकता। और करता भी है तो करता रहे, वो चैलेंज पूरा करने आएगा ही नहीं। तो मसला ये है वकास साहब। समीर भाई, मसला ठीक है, लेकिन हर आदमी अपने एंगल से समझता है। आप कहते हैं कि अल्लाह मौजूद नहीं है, हम कहते हैं कि अल्लाह है। सही, अल्लाह निज़ाम दुनिया का निज़ाम चला रहा है। कभी दिन ऊपर, कभी रात छूटी, हवाएं चलना, बादलें, बारिश बरसाना, सूरज निकलना, आप बात नहीं समझे। ये मौजूद और गैर मौजूद से मेरा मतलब आप शायद फिर समझे नहीं, मिसअंडरस्टैंड किए हैं। मौजूद से मेरी मुराद ये थी कि आज हमारे साथ, हमारे बीच में मौजूद नहीं है। हम उसको देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उससे गुफ्तगू नहीं कर सकते। समझ ली, सुन लीजिए ये पहले। ये उसकी गैर मौजूदगी का मुराद है मेरा। और आप उसकी जो मौजूदगी मानते हैं, आप उसकी मौजूदगी हमेशा से होने में और हमेशा रहने में मानते हैं, लेकिन वो मौजूदगी का एहसास या फिर उस मौजूदगी का तसव्वुर वो आप नहीं बता सकते कि उसकी मौजूदगी है कैसी, कहां है और किस तरीके की है। ये आप इरशाद नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। लिहाजा है तो आप भी हमारे जैसे ही, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसकी मौजूदगी पर ईमान रखते हैं और जो गैर मुस्लिम है वो उसकी मौजूदगी पर ईमान नहीं रखते।
یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے بس وقاص صاحب، بات لیکن ایک ہی ہے. بھائی بات یہ ہے نا کہ اللہ جل شانہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ جو انسانی ادراک ہے، انسانی بصیرت ہے، وہ مجھے ادراک نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دیکھ لے تو نہیں دیکھ پائے، لن ترانی ایسا کہا. جی اور آپ نے جو بات کی کہ اللہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے، یہ بھی اللہ نے 1400 سال پہلے لکھا. وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں، لولا یکلمون اللہ، کیوں اللہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، او تأتین آیا، یا کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا ہے. کذالک قال الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی وہ لوگوں نے اس طرح بات کرتے تھے. من قبل مثل قولہم، اس طرح کی بات کرتے جیسا آپ آج نے کیا. تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کا دل ایک جیسا ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم بیان کرتے ہیں اپنے آیاتوں کو ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. جو یقین نہیں رکھتے ظاہری بات ہے وہ اس طرح بات کریں گے. ایگزیکٹلی. تو وقاص بھائی کنکلوژن پھر وہی آئے گا. اور مہربانی کہ آپ نے لاسٹ میں یہ والی آیت پڑھی یقین والی، اس سے بات صورتحال جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا. اللہ کی عدم موجودگی پہ آپ کا یقین ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر یہ جو آیتیں ہیں جن کو آپ تلاوت کر رہے ہو، یہ تمام آیتیں آپ کے ایمان، آپ کے یقین کا حصہ ہے کہ یہ باری تعالیٰ کا، یہ اللہ کا کلام ہے. تو ڈفرنس جو ہے آپ کے ہمارے بیچ میں وہ صرف یقین کا ہے. دیکھیں ہم بھی اللہ کی موجودگی میں، اللہ کے وجود میں، اللہ کے خالق کائنات ہونے کا ہم بھی یقین کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے یقین کا جو معیار ہے، ہمارے ایمان کا جو معیار ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کے ایمان کا معیار ہے. آپ کے ایمان کا اور یقین کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو خبر ہیں، جو اخبار ہیں، ان کو صرف اللہ کے رسول کے بھروسے پر آپ نے مان لینا ہے. لیکن ہمارا یہ معیار نہیں ہے کسی چیز کا یقین کرنے کا. ہمارا معیار ہے اس چیز کے ہونے کی کوئی پختہ ٹھوس دلیل، اس کے ہونے کا احساس، اس کی عدم موجودگی کا کوئی ایسا معجزہ. سن لیجئے یا پھر اس کو اپنے سینسز سے ہم لوگ آبزرو کر سکے، آنکھوں سے دیکھ سکے، کانوں سے سن سکے، اپنے جسم سے محسوس کر سکے. یہ چیز ہمارے کسی بھی چیز کے ہونے کے یقین کو یقینی بنانے کے معیار ہیں. آپ حضرات کے معیار یہ نہیں ہے. آپ حضرات کا معیار صرف اتنا سا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو یہ قرآن دیا ہے، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے تو سچ ہے، بس. نہیں تو بات یہ ہے اور آپ نے کہا بھی کہ غیب کی باتوں پر، اب آپ نے کہا بھی اس میں ذکر کرتے ہوئے کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے. تو اللہ خود جو ہے وہ غیب ہے. اللہ خود حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے. اللہ غیب ہے، ہماری نظروں سے، ہماری آبزرویشن سے غیب ہے. تو آپ تو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویسے ہی فرشتے جو ہیں وہ بھی غیب ہیں، آپ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول جو ہے وہ بھی غیب ہیں، اب موجود نہیں ہیں، ہم نے دیکھے نہیں، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی تمام تر کتابیں جو ہیں سوائے قرآن کے، وہ تمام بھی غیر موجود ہیں، آج اس فارم میں نہیں ہے موجود جس فارم میں اللہ نے ان کو اتارا، اس پر آپ ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی اور بری. تقدیر کہتے کس کو ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں آنے والا پل، آنے والا وقت اور یہ آنے والے حالات، اس کو تقدیر کہتے ہیں. وہ ابھی تک آپ کے سامنے آئے نہیں، اور جب تک آئیں گے نہیں تب تک وہ تقدیر ہے. جب وہ آ جائیں تو پھر وہ انسیڈنٹ ہو گیا، جو گزرا ہوا وقت ہو گیا. تو آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے قیامت کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں، اور بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کیے جانے پر، مرنے کے بعد. تو آپ مرے نہیں ہیں، پھر زندہ نہیں ہوئے، تو یہ بھی آپ کے آبزرویشن میں نہیں، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں. لہٰذا آپ کا جو ایمان کے جو آپ کے ارکان ہیں 7، وہ ساتوں کے ساتوں غیر موجود ہیں، ان پر آپ ایمان رکھتے ہو. دس از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ اس. اچھا مجھے آپ کسی خالق کائنات پر یقین رکھتے ہیں؟ جی میں رکھتا ہوں. تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کون سا کتاب آیا آپ کے پاس آپ جب ایمان رکھتے ہیں اس کا کیا کوئی صفت مجھے اس بتائیے کو مجھے. جاننے اور سمجھنے اور اس کے ہونے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے وقاص بھائی، نہ کسی شخص کی خبر کی ضرورت ہے، نہ کسی کی گواہی کی ضرورت ہے جو آپ کو ہے. مجھے اس کے ہونے کے لیے اس کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرنا ہی کافی ہے.
तो वो कौन है? खालिक कायनात। तो आपके पास कौन सा ऐसा दलील आया है जो आपने कहा कि ये खालिक कायनात बताया ना मैंने है? कायनात, और तो आपने तो देखा तो नहीं मैंने कायनात को देखा है, रोज देखता हूँ। कायनात। हम भी देखते हैं। हम मैंने पहले क्या कहा, ये बारिश बरसाना, हवाई चलना, दिन रात की गर्मी सर्दी, ये कौन कर रहा है? हम देख रहे कायनात। खालिक, ये खालिक इतना कर रहा है। ये तो वैसे तो मैंने पहले बताया। ओके, मैंने ये मेरा सवाल तो ये है ही नहीं कि खालिक नहीं है, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि खालिक नहीं है। जब आपने कहा कि है मेरा एक खालिक है, नहीं, तो आप सुना ना मेरी तो फिर बात, आप मैंने 1 मिनट रुकिए ना, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि खालिक नहीं है या खालिक ने कायनात को नहीं बनाया, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उस खालिक ने कुरान नाम की एक किताब भेजी अपने नबी के ऊपर। ये आपका दावा है, आपको मुझे बस यही साबित करना है कि उसी खालिक ने कुरान भेजी है। सर एक सेकंड, आप जी अभी कहा कि मेरा ईमान है खालिक कायनात पर, इसका मतलब है आप जी खालिक कायनात को मानते हो, एक हस्ती को जी मानते हो, ठीक है। चाहे जी आपने कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा, जी दुनिया में कितने लोग हैं उसने अल्लाह की किताब नहीं पढ़ा, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा खालिक है, ठीक है। जी और ये भी मानते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा, अगर ये अगर मैं दुनिया में अच्छे काम करूंगा या बुरे काम करूंगा, तो उसका मुझे अच्छा सिला और बुरा सिला मिलेगा। ये ईमान है आपका? जी बिल्कुल। तो फिर सही है, कोई इख्तिलाफ ही नहीं है फिर। हम भी तो यही इख्तिलाफ है कहते हैं, ना, लेकिन इख्तिलाफ मैंने बता जहाँ दिया पे ना आपको, इख्तिलाफ क्या है वकास भाई। सर इख्तिलाफ एक मैंने सेकंड आपको, आप सुनिए ना, ये इख्तिलाफ मैंने अभी आपको बताया, अब आप फिर कह रहे हैं कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ ये है कि उस खालिक कायनात ने एक किताब कुरान नाम की भेजी और उस खालिक कायनात ने एक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का भेजा, ये इख्तिलाफ है। अब ये मैं इस बात को नहीं सुनी, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि अल्लाह ने कुरान नाम की एक किताब भेजी है, यानी कि खालिक कायनात ने, मैं अल्लाह भी नहीं कहूंगा क्योंकि अल्लाह भी उसको कुरान में ही कहा गया है। खालिक कायनात ने एक किताब कुरान नाम की भेजी और एक बशर को नबी बना करके भेजा। मैं इस बात पर ईमान नहीं रखता हूं और यही आपके और मेरे बीच में इख्तिलाफ है। अब आपको यह साबित करना है, ताकि क्योंकि मैं खालिक कायनात को तो मानता हूं, अब वो खालिक अच्छा कायनात अल्लाह है और उसने नबी को और कुरान को भेजा है, मैं ये मान लूं, इसके लिए आपको मुझे दलाइल पेश करने होंगे कि क्यों मैं मानूं कि आपके अल्लाह ही ने कुरान नाजिल किया और एक नबी भेजा। अच्छा, ये मत मानो, ठीक है, लेकिन ये आप तुम मानते हो कि मरने के बाद उठना है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि मैं मरकर नहीं देखा हूं अभी। तो फिर ये आप अच्छे और बुरे काम क्यों करते हो, जब आपको आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा मानना यह है कि उनका बदला मुझे इसी दुनिया में मिल जाएगा, इसी जिंदगी में। मेरी इसका मतलब है आप बादल मौत इसके मुनकिर है। अब मैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, वही तो कह रहा हूं, जो चीज मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, जिसकी मेरे पास कोई दलील नहीं है, वो आपके ईमान का हिस्सा है, मेरे ईमान का हिस्सा नहीं है वो। नहीं, अच्छा, आप साफ कहो। इन्होंने टॉपिक को जब डिरेल कर ही दिया है, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ वकस भाई से। अच्छा वकस भाई, आप क्या अच्छे काम बस इसीलिए करते हो कि आपको उसका अच्छा फल मिलेगा फ्यूचर में? नहीं, ये तो इंसानियत है, हम इसलिए भी करते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो कुरान कहता है ना, वकस मेन भाई पॉइंट देखो, बात अभी ना शॉर्ट करते हैं, ठीक है, बात शॉर्ट करते हैं। क्या आप अच्छे काम इसीलिए करते हो कि उसको करने के बाद अच्छा कोई फल मिलेगा जन्नत में आपको, सिर्फ इसीलिए अच्छे काम करते हो? नहीं, ये तो मैंने कहा नहीं। ठीक है, मेरा सेकंड पॉइंट कि क्या आप बुरे काम इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको कोई देख रहा होता है, आपको सजा देगा? मैंने कब कहा? तो इनसे क्यों पूछ रहे थे कुछ देर पहले कि क्यों अच्छे काम करते हो अगर कोई सजा नहीं देगा, क्यों बुरे काम नहीं करते हो अगर कोई सजा नहीं देगा, फिर क्यों कर रहे थे क्वेश्चन आप अभी? दुनिया में तो कोई सजा नहीं है। उनका देखिए, वो कहें या ना कहें, उनका यही है, अल्लाह ने बुरे काम करने से रोका है और बुरे काम करने वालों को अल्लाह सजा देगा, और अल्लाह ने अच्छे काम करने का, नेक अमल स्वालिहात करने का हुक्म दिया है और उसके बदले में अल्लाह रिवॉर्ड देगा। इसीलिए मुसलमान बुरे काम नहीं करता और अच्छे काम करता है। जहां तक मेरा मसला है वकास साहब, तो मेरे मुतालिक आपका जवाब ये है कि मैं अच्छे काम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया अच्छी हो जाए और लोग एक दूसरे की मदद करें।
اور میں برے کام اس لیے نہیں کرتا کیونکہ جب کوئی دوسرا وہ برا کام میرے ساتھ کرے گا تو مجھے وہ مجھے وہ عمل ناپسندیدہ ہوگا. لہٰذا میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو مجھے اپنے لیے ناپسندیدہ ہو. یہ میرا کرائٹیریا ہے. اس کے لیے مجھے نہ کسی خدا کی ضرورت، نہ کسی جزا سزا کی ضرورت، نہ کسی انعام کی ضرورت، نہ کسی جنت جہنم کی ضرورت ہے. وقاص بھائی. جی سر. سر بھائی میں نے پہلے کہا کہ قرآن جو ہے بہت کتنے لوگ ہیں، قریباً 95% لوگ ہوگا جو نہیں پڑھا، لیکن یہ اچھائی اور برائی اللہ نے انسان کے نفس میں ڈالا ہوا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یعنی اس نے الہام کیا انسان کے نفس میں کہ یہ کام برا ہے اور یہ اچھا ہے. پھر اس کے لیے اپنے تو والد پھر وقاص بھائی پھر کسی نبی کی اور کسی کتاب کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب اللہ نے انسان کے اندر ڈالا ہوا ہے اس کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے لیے، پھر کسی کتاب اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ڈالا ہے، لیکن پھر یہ لوگ ڈالا بھی، لیکن پھر یہ لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ اپنی ہاں تو پھر ٹھیک ہے، وہ ان کی ول ہے، ان کو کرنے دو غلط کام، ان کو بھگتنا پڑے گا غلط کام کا نتیجہ. ٹھیک ہے، غلط کام ڈالا، یہ غلط ہے. آپ کو اگر کوئی بھی ایسا ان پڑھ آدمی ہو، اگر ساری دنیا اللہ کے ہونے اور اللہ کے انصاف کے اوپر یقین رکھتی وقاص خان صاحب، تو دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی آئین نہ ہوتا، کوئی کانسٹیٹیوشن نہ ہوتا، کوئی سزا کا جو ہے معاملات نہ ہوتا. اگر کسی آدمی نے چوری کی، پولیس اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہے. کسی نے قتل کیا، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. کسی نے کسی کا بلاత్కాر کیا، ریپ کیا اور کسی نے اس کا قتل کر دیا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. کئی لوگوں کو پھانسی تک بھی چڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے قانون اسی لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کو کسی خدا کے ہونے اور کسی خدا کے انصاف کرنے کا یقین نہیں تھا. اس لیے انہوں نے دنیا کے اندر یہ قوانین بنائے تاکہ لوگ دوسرے لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکیں، دوسرے لوگوں کی تکلیف سے محفوظ رہ سکیں. اور سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو ملک ہے اسلامی جمہوریت پاکستان، جس کو بھارت سے 1947 میں صرف اس بنا پر الگ کیا گیا تھا کہ وہاں پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے. افسوس کی بات یہ ہے وقاص خان صاحب کہ وہاں بھی آپ کے پاس اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، وہاں بھی آپ کے پاس انسانوں کا ہی بنایا ہوا قانون وہاں پر جو ہے نافذ ہے، اور اسی قانون کے مطابق وہاں پر لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہے. اللہ کا قانون آپ کے اسلامک ممالک میں بھی نہیں ہے. سر جی یہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ دنیا کی جو قوانین ہے نا یہ سب اللہ نے قرآن میں بتایا، لوگوں نے اسی یعنی لوگوں نے اسٹارٹ کیا. یہی تو کہتا ہے کہ یہی میرا اگر راستہ ہے. اللہ نے قرآن میں تمام قوانین بتائے ہیں تو مجھے ریپسٹ کو کیا سزا دینی ہے وہ قرآن سے ثابت کر دیں. گو اہیڈ. ایسے ریپس جو کسی بچی کا بلاత్కాر کرتا ہے، کسی لڑکی کا ریپ کرتا ہے، کسی ماں بہن کا ریپ کرتا ہے، اس کو اللہ نے کیا سزا تجویز فرمائی ہے اس کی، وہ آپ مجھے قرآن سے بتا دے. اگر اللہ نے سارے قانون بنائے ہیں تو بتائیے. تو اس کو صورت نساء میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بتائیے سورہ نساء کی آیت نمبر بتائیے جس میں بلاత్కాر کی سزا لکھی گئی ہے. بتائیے. اچھا میں بتا دیتا ہوں. صورت نساء میں ایک آیت ہے، جی اس میں سب سورہ نساء اوپر آیت نمبر 4 کی آیت نمبر بتائیے اور اس میں ریپسٹ کی سزا بتائیے. آپ نکالیے غالباً 16 نمبر آئے تھے. 16 نمبر نکالیے. 16 اور 17. سورہ نساء کی کون سی آیت؟ 16 اور 17 میں نکال دیتا ہوں. یہ لیجیے، میں آپ کی اسکرین کے اوپر لے کے آؤں. یہ لیجیے جی، سورہ النساء کی آیت نمبر 16 آپ کے سامنے اور 17 آپ کے سامنے. آپ پڑھ لیجیے تھوڑا جلدی کر. نہیں آپ پڑھیے، حوالہ آپ لے کر کے آئیں، آپ پڑھیے، آپ پڑھ کے بتائیے کیا لکھا ہوا. آپ میرے پاس ترجمہ نہیں ہے، عربی ہے صرف. کوئی آپ بات پڑھ نہیں، لیجیے بہتر. عربی پڑھ دیں آپ صرف. تھوڑا ٹائم لگے گا نا اس میں، آپ پڑھ لیجیے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں آئندہ درگور ہو توبہ اور اصلاح کے لیے تو ان سے منہ پھیر لو. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوزہ
नादानी क्या है, बुरा नादानी कोई बुराई कर गुजरे, यानी कि अगर किसी नादानी में किसी गलती से वो कोई बुराई कर गुजरे, फिर जल्द इससे बाज आ जाएं और तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला भी उनके तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। इसमें तो रेपिस्ट की सजा तो नहीं है वकास भाई। हाँ, इसमें जो लोग गुनाह कर जाएं, सुन लें, जो लोग गुनाह कर जाएं और तौबा कर लें, उनकी माफी का जिक्र जरूर है, इसमें रेपिस्ट की सजा नहीं है। ऊपर है शायद 14 और 15 है इस तरह। चले 14-15 पढ़ लेते हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और इसकी मुकर्रर हदों से आगे निकले, इसे वो जहन्नम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। जी, इसमें भी सर रेपिस्ट की सजा नहीं है। आगे वल्लाती यतीनल फाहिशता, तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम कर रहे हैं, उन पर अपने में से 4 गवाह तलब कर लो। कौन बेहयाई का काम करें? औरतें। तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें, उन पर 4 गवाह तलब कर लो। अगर वो गवाही दे दें तो इन औरतों को घरों में कैद रखो यहां तक कि उनको मौत आ जाए, मौत उनकी उम्र पूरी कर दे। ये अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता निकाले। सर, यहां भी रेपिस्ट की सजा नहीं है, यहां भी उन औरतों की सजा का जिक्र है जो औरतें जिना कर जाएं। रेपिस्ट का जिक्र नहीं है यहां भी। यहाँ पर अगर औरत न चाहे ना तो वो जिना नहीं करते, अगर यहाँ पर औरत चाहे तब जिना करते, और इसके लिए सजा ये है कि उस पर 4 गवाह पेश करें। मैंने जिना की बात ही नहीं करी वकास साहब। ये जो हमारे मुफ्ती साहब हैं कमेंट सेक्शन में और आप जो हो, आप दोनों ही मुझे जिना की आयतें पेश कर रहे हो। मैं जिना की बात ही नहीं कर रहा हूं। जिना वो होता है जो एक मर्द और एक औरत दोनों अपनी मर्जी से करते हैं, उसको जिना कहा गया है। लेकिन जो रेप होता है वो किसी एक की मर्जी से होता है, दूसरे की उसमें ख्वाहिश और मर्जी नहीं होती, ना रजा होती है, इसीलिए उसको रेप कहा गया है। तो इस आयत के अंदर औरतों के जिना करने का हुक्म है। सुन लीजिए बात को पहले पूरी। इस आयत के अंदर जो औरतें जानी हैं उनकी सजा का इसके अंदर जिक्र किया गया है। वो भी कब? जब 4 मर्द मुसलमान गवाह वो लेकर के आ जाएं जिसने जिना का इल्जाम लगाया है। सूरत अनाम की 151 निकालो। मैं मेरी बात पूरी कर लूं फिर दूसरी आयत पे चलता हूं। 4 आयतें आप खुलवा चुके हैं, पर मुझे वो मिला नहीं है। 1 सेकंड रुक जाए, मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए मुझे। इसी आयत के अंदर लिखा हुआ है कि उनके ऊपर 4 गवाह तलब करो। 4 गवाह कौन है? 4 गवाह मर्द और मुसलमान। आपकी अपनी शरीयत के अंदर लिखा हुआ है कि 4 मर्द मुसलमान गवाह उनके ऊपर जब आकर के गवाही देंगे तब उनके जिना को जिना कंसिडर करके उनके लिए ये सजा है। और ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि झूठ बात कर रहे हो। तो आप अपनी शरीयत पढ़ो मुफ्ती साहब, जो कि आपने पढ़ी नहीं है। इससे मुझे अंदाजा लग गया जब आपने कहा झूठ बात कर रहे हो, इससे मुझे इतना अंदाजा हो गया कि आप मुफ्ती तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि अगर आप मुफ्ती होते तो आप ये बात कभी ना कहते कि मैं झूठ बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी अपनी शरा के अंदर ये बात लिखी हुई है। और मैं अभी जो है बाकायदा एक बड़े जो है आलिम को लेकर के आ रहा हूं। बड़े एक आपके स्कॉलर्स हैं असीम अल हकीम, उनको मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं। वो आपको बताएंगे कि मैं गलत बात कर रहा हूं या आप कर रहे हो। Zina. Well, as for is the punishment and expiation for adultery, zina. Well, तो इससे किसी ने पूछा कि जिना की जो सजा है वो क्या है। अब ये साहब जो है बता रहे हैं। as for the punishment, there is a prescribed punishment in this life, and there is a prescribed punishment in the hereafter. इसके लिए बाकायदा इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर जो सजा है वो मुकर्रर की गई है जिना के लिए। Without doubt,
fornication and adultery is one of the heinous and major sins in Islam. And Allah Azza wa Jal associated zina with shirk and murder, as in Surat Al-Furqan. बिलाशुबा जिना जो है वो इस्लाम में एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह माना गया है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरत फुरकान के अंदर जिना की जो मिसाल दी है वो शिर्क और कत्ल के बराबर दी है. However, the punishment differs. So if a person fornicates, this means that he is not married and was not married before. And this is sort of called in Islam as a virgin. So a man or a woman who has not married in their life, they're considered to be virgins. Even if they committed adultery or fornication many times, still, they're still classified as virgin. Because in Islam we have virgin and we have thayyib. A thayyib is a woman, usually a person, who is either married, has been married, whether divorced, widowed, or still married. He's considered to be a thayyib. तो ये बता रहे हैं कि जिना की जो सजा है वो दो अलग अलग तरीके के लोगों को दो अलग अलग सजा देने का जो है जिक्र करता है. एक तो वो है जिसकी अपनी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं हुई है, चाहे उसने मल्टीपल टाइम जो है वो जिना किया हो, फॉर्निकेशन किया हो, अभी भी उसको वर्जिन कंसिडर किया जाएगा, जिसकी शादी नहीं हुई है. एक तो ये है. दूसरा वो है कि जिसकी शादी हो गई है, चाहे डाइवोर्स हो गया या उसकी बीवी या उसका शोहर मर गया, तो उसको कहा गया है इस्लाम के अंदर सय्यब. तो ये दो लोग हैं, एक तो वर्जिन और एक सय्यब. तो इनकी जो सजा है इस्लाम में जिना करने के लिए वो अलग अलग है, इसने यहां पर ये चीज बताई. आगे चलें. In Islam, if a virgin commits fornication and that person, he or she, are caught or is caught red-handed, and red-handed means that यहां से ध्यान से सुनना है. तो अगर एक वर्जिन जिसकी शादी नहीं हुई है वो अगर जिना करे और रंगे हाथ रेड हैंडेड पकड़ा जाए, आगे कहता है रेड हैंडेड मींस, ये रेड हैंडेड का मतलब अब ये बता रहा है कि रेड हैंडेड पकड़े जाने का मतलब क्या है. ध्यान से सुनिएगा. 4 male Muslim witnesses saw the actual act and they can graphically describe what they had seen. 4 मर्द मुसलमान चशमदीद गवाह जिन्होंने ये काम होते हुए देखा हो और वो ग्राफिकली बता सकें कि उन्होंने क्या देखा. इसके ऊपर आपके इमाम अबू हनीफा लिखते हैं कि उन लोगों ने इस तरीके से देखा हो कि जिस तरीके से सलाई जो है वो सुरमेदानी के अंदर जाती है और बाहर आती है, इस तरीके से उन्होंने जिना करते हुए देखा हो. ऐसे 4 मर्द मुसलमान गवाह, उनकी विटनेस, इसके बिना पर जिना का फैसला होगा. और उस आयत में जो आयत आपने बताई है वकास साहब, उस आयत के अंदर भी यही कहा गया है कि 4 गवाह लेकर के आओ. अगर वो 4 गवाह मिल जाएं तब सजा देनी है, 4 गवाह नहीं मिले तो सजा नहीं देनी, क्योंकि सजा बनती ही नहीं है. अगेन मैं आपसे फिर पूछता हूं, आपने मुझे जिना की सजा बताई है, मैंने जिना की सजा नहीं पूछी, क्योंकि जिना दोनों की मर्जी से होता है, लेकिन दोनों के बीच में निकाह का रिश्ता नहीं होता, शादी का रिश्ता नहीं होता, या वो उसकी लौंडी नहीं होती. इस वजह से इसको गुनाह सिन कंसिडर किया जाता है, हराम है. लेकिन इनकी सजा भी 4 मर्द मुसलमान की गवाही के ऊपर मबनी है. अब तुम मुझे यह बताओ कि मैंने तो पूछा था तुमसे कि मुझे रेप की सजा बतानी है, जिना की नहीं. तो रेप की सजा किधर है भाई?
अच्छा, तो उस आयत में क्या सजाएं नहीं मिली आपकी फाहिशा था? भाई मेरे इसमें रेप की सजा नहीं है। नहीं, उसमें जो रेप फाहिशा कहा, रेप रेप की क्या सजा है ये बताओ। नहीं कुरान में कई जगह है, लेकिन यह जो सजा मिली है ये किस चीज का है? कौन सी सजा? उसने कहा जब उस पर चार गवाह पेश करो, जब चार आदमियों ने गवाह दिया। जिना की है भाई, बता रहा हूं ना, जिना की है, रेप की नहीं है। जिना की सजा की बात हो रही है। रेप अच्छा, एंड तो जिना इज अ डिफरेंट थिंग। अब सुनो, एक लड़का और एक लड़की हमारे इंडिया में बगैर शादी के रहते हैं, साथ में फिजिकल भी होते हैं, उसको दुनिया में हर जगह और हमारे इंडिया में कहा जाता है लिव इन रिलेशनशिप। वो दोनों अपनी मर्जी से साथ रहते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, शादी नहीं हुई हुई होती उनकी, ना कोर्ट से ना किसी मजहब से, किसी से भी नहीं। उसके बाद भी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है। द रीजन इज कि वो दोनों एडल्ट है और अपनी मर्जी से रह सकते हैं। इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता, इस्लाम इसको कहता है जिना, यह है जिना। लेकिन वो दोनों लड़का और लड़की जो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जाकर के रेप का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें उन दोनों की कंसेंट है। आई बात समझ में? अब रेप किसको कहते हैं? एक लड़की रास्ते से जा रही है, 2-3 लड़कों ने उसको जबरदस्ती किडनैप कर लिया और कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर के उसके साथ गलत हरकत की, उसके साथ बदतमीजियां की, उसके साथ बलात्कार किया। अब इसको कहते हैं रेप। इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सजा है। और जैसे ही लड़की जाकर के कंप्लेंट करेगी कि मेरे साथ फला फला आदमी ने रेप किया, तुरंत उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अगर वो दोषी पाया गया, कोर्ट उसको सजा सुना देगी। हमारे देश के अंदर इसके लिए फांसी तक का प्रावधान है रेप के लिए, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के लिए नहीं है। तो ये जो यहां पर आयत बात कर रही है, वो दोनों मर्द और औरत की कंसेंट से बनाए हुए रिश्ते की बात कर रही है, जिसको इस्लाम हराम समझता है। ये रेप की बात नहीं कर रही है। रेप इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे आपको अल्लाह के कानून से रेप की सजा दिखानी है, ताकि आप ये साबित कर सको कि लोगों ने जो कानून बनाया है दुनिया में, वो अल्लाह के कानून को देख के बनाए। रेप की सजा किधर है वो बता दो। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको क्या जीना और फाहिशा में क्या फर्क मिलता है? मेरा टॉपिक ही नहीं है और मैं डाइवर्ट करूंगा भी नहीं। आपको सिर्फ मुझे वो आयत देनी है जो रेप की सजा देती हो। अगर आपके पास है तो पेश करें, नहीं है तो कहें कि मेरे पास नहीं है। कभी कहते हैं अज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू, उधर जानी कहा, लेकिन यहाँ पर फाहिशा कहा। कभी फवाहिश फाहिशा आता है। उसको कहते हैं जो प्रोस्टिट्यूट होती है। अब फाहिशा का सुन लो। फाहिशा होती है प्रोस्टिट्यूट, जिसको हम इंग्लिश टर्म में कहा जाता है कॉल गर्ल, जो पैसे लेकर के लोगों के साथ रातें गुजारती है, उसको फाहिशा कहा गया है। वो भी जिना, वो भी रेप नहीं है। रेप को बताओ। नहीं, आप नहीं समझे ना। मैंने ये कई टर्म बताते हैं कुरान करीम, और कई जुमले बताते हैं। कभी कहते हैं वला भाई तक़रबुल जुमले को फ़वाहिश। छोड़ दो, ये सब चीजों को छोड़ दो, मुझे रेप की सजा बताओ इस्लाम में क्या है। यहाँ पर तो बताया ना कि उसको पकड़ो, वो जिना की सजा है, और वो भी तब दी जाएगी जब 4 मर्द मुसलमान गवाह मिलेंगे। अगर किसी ने किसी का रेप किया और ऐसी सुनसान जगह पे किया कि वहां पर वो दोनों ही थे, 4 मर्द मुसलमान तो दूर, वहां पे परिंदा भी नहीं था, अब वो 4 गवाह तो मिलेंगे नहीं, सजा कैसे मिलेगी आपके इस्लाम में उसको, जिसने रेप किया? बताओ। कानून देगा ना। नहीं ये सिद्धार्थ सब भाई, कुछ- आप रेप पे उनसे मत पूछिए, क्योंकि रेप अभी तक उन्होंने साबित नहीं किया। ये ओनली जिना की बात हो रही है। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं यहाँ पे। बिल्कुल मैं वही हूं, आपकी बात समझ रहा हूं अच्छा मृत्यु भाई, लेकिन ये आदमी कह रहा है कि भाई जीना अलग यही रेप है। तो अगर यही रेप है, सुनो, अगर 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में मान लूं जो कि नहीं है, क्योंकि ये जिना की बात हो रही है और सिर्फ औरत को सजा देने की बात हो रही है, यहां मर्द को सजा देने की बात नहीं हो रही है। ये भी कान खोल करके सुन लो। इस आयत में मर्द को सजा देने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ औरत की बात हो रही है। तो रेप जो है वो ज्यादातर मर्द करते हैं, 99.9% रेप मर्द करता है। औरतें रेप नहीं करती, करती हैं कोई 0.1%, वो एक अलग चीज है, वो कोई एक अलग डिफरेंट केस है। यहां पर सजा औरत को दी जा रही है, मर्द को कोई सजा देने का प्रावधान नहीं है यहां पर। एक सेकंड। जिना जो है दोनों को इससे सजा दिए जा रहे हैं कि सूरत नूर की जो दूसरी आयत है ना, उसमें कहा अज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा। अरे भाई, जिना जानी का का मतलब ही जिना होता है। क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? घूम फिर करके वहीं जैसे सांप अपनी पूंछ के ऊपर लपेटे लेते 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 कुंडली बनाता रहता है, वो कुंडली आप बनाए जा रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है।
मैं कह रहा हूं कि अगर रेप की सजा इस्लाम में है तो कौन सी आयत में कहां है और कैसे दी जाएगी, क्योंकि ये जो आप आयत पेश कर रहे हो ये ना तो रेप के लिए है, जिना के लिए है, और अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए रेप के लिए कंसिडर कर लूं कि रेप की भी ये सजा है, तो भाई यहां तो सजा और सिर्फ औरत को दी जा रही है, दूसरी प्रॉब्लमेटिक चीज। तीसरी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि तब दी जा रही है जब 4 आई विटनेस मर्द मुसलमान मौजूद हो गवाही देने के लिए, वो नहीं है तो फिर रेप की सजा इस्लाम में नहीं मिलेगी, मतलब ना जिना की मिलेगी। जिना की क्यों नहीं मिलेगी? सूरत नूर की जो दूसरी आयत है उसमें कोई गवाह नहीं है उसमें। अगर वीडियो आप मुझे है, 1 मिनट, अगर कोई वीडियो है तो वीडियो के नहीं, बिहाफ आप पर इस्लाम में सजा मिलेगी? सच बताओ ना, इस वीडियो के हिसाब से इस्लाम में सजा मिलेगी? अगर किसी ने किसी का रेप किया और उसकी वीडियो फुटेज है, इस्लाम में सजा मिलेगी उसकी? अब ये तो अभी जो नया दौर आ चुका है तो उसी हिसाब से हाँ मिल जाएगी। हाँ, उसी तो हिसाब से बात करें। इस नए दौर के हिसाब से अगर कोई किसी का रेप करता है और उसको वीडियो फुटेज मिलती है, वीडियो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मिलता है, तो क्या इस्लाम में उस वीडियो फुटेज के बिहाफ पर सजा दी जा सकती है, जिना की या रेप की, दोनों की? जा सकते हैं। अल्लाह जो नहीं दे ये सकते, तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे आप मुझे सकते। आयत कौन सी आयत में लिखा है? आगे सुनो। specifically in detail, or a person confesses. या तो 4 गवाह मिल जाएं, मर्द मुसलमान, जो डिटेल में बता सके कि उन्होंने क्या देखा, या तो फिर कन्फेशन, उनमें से कोई आकर के ये कह दे कि मैंने जिना किया है, खुद से एक्सेप्ट कर ले, तब इसे कहते हैं कन्फेशन। So it's one of the two. ये इन दोनों में से कोई एक सजा देने के लिए। We don't refer to DNA. वी डोंट प्रिफेर टू डीएनए, हम मेडिकल रिपोर्ट को, डीएनए रिपोर्ट को नहीं मानते। We don't believe in video footage. हम वीडियो फुटेज को नहीं मानते। अरे ये पुराने दौर का है मेरी भाई। ये कहाँ पुराने दौर की का है है? सब? एक मिनट, ये पुराने दौर का है? ये असीमन अरे हकीम खुद पुराने दौर का है? ये अभी जिंदा है, ये इसने अभी 8 महीने पहले ये वीडियो डाली है, अभी। अरे डाल इसको पुराने दौर का बोल रहे हो? यार उसका अपना राय है, लेकिन ये जो सूरत नूर की आयत है उसमें तो कोई गवाह नहीं है। गवाह की बात सूरह नूर की आयत में भी गवाही का जिक्र है, जो अरे तुमने क्या पेश सूरत की याद है। दिलाई है इन्होंने समीर भाई। इसी सूरत की आयत नंबर 60 लगाएं जरा। क्या सूरत याद दिलाई है। मैं तो खैर इसलिए आया भी नहीं था, लेकिन अभी मैं आया हूं और बस मेरे अल्लाह की मर्जी है कि इनके मुंह से सूरह नूर का जिक्र निकला। आयत नंबर 60 लगाएं सूरह नूर की। ये लीजिए सर, सूरह नूर निकालते हैं हम। और अगर मैं आपको बताऊं ना उसमें अल्लाह क्या कह रहा है, आप बोलोगे झूठ बोल रहे हो अली भाई, आप बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं कह सकता अल्लाह। पढ़ लेते हैं ना। हाँ, बड़ी बुरी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद ना रही हो, अगर अपने कपड़े उतार के रखें तो उनपे कोई गुनाह नहीं। वाह वाह। और ये कहते हैं इस्लाम में जिना की सजा। क्या बकवास लगाई हुई है कब से? 2 घंटे हो गए मुझे सुनते हुए। आपने गलत पढ़ा। ओ भाई जा यार। ओ भाई सामने आयत लिखी हुई है। आपने अब कहा ये था कहेगा, नहीं अब ये कहेगा, सुनो चामरते भाई और अली भाई, अब ये कहेगा ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये जलंधरी जूनागढ़ी ने जो की है, ये सब लानती है, गलत है। मैं करूंगा ट्रांसलेशन कुरान की। अभी अपने खुद की ट्रांसलेशन करेगा और कुछ और उतारने को बताएगा। अरे अल्लाह के ऊपर झूठ बोल रहे हो यार। अली भाई ने कहा था बोलेगा कि झूठ है। बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ही ना रही हो, वो अगर अपने कपड़े उतारे रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। ये सामने लिखा हुआ है। अरे बकवास। कपड़े का हम उतार भाई, आपने उतारना कहाँ से निकाला भाई? उतारना इसमें क्या उतारने का? ये मुझे क्या पता, पूछो सर जलंधरी से जूनागढ़ी से कहां से निकाला इसने। यार भाई आप यहाँ पर एक बात, अगर कोई बूढ़ी औरत है रास्ते में जा रही है तो अल्लाह के, अगर उसके हिजाब की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसको तकलीफ होगी। चले आप अगर रेप की सजा दिखाएं। चले रेप, हमें आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, आप रेप की सजा की आयत दिखाएं। आगे उस आयत में कहता है वयस्तअफिफन खैरुल लहुन्ना। कौन सी आयत में? अगर वो कौन सी आयत में? अरे भाई कौन सी आयत में? उसी आयत में कह रहे जो आदमी आया उसके लिए निकाला। नहीं, उसके अभी आगे आपने सूरह नूर की आयत बोली थी ना, सूरह नूर की आयत बताएं कौन सी है। ये सूरह नूर खुली हुई है स्क्रीन पे, इसकी कौन सी आयत है? सूरह नूर की मैंने दूसरी आयत बोली है। बताओ जाने बताओ बताओ। जरूरत के लिए डायरेक्ट अल्लाह बोलते हैं कि उसको सजा दो। अरे भाई सूरह नूर की दूसरी कौन सी आयत है?
दूसरी आयत, ओके, ये लो दूसरी आयत, ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़ो। जी, और मुझे गवाह दिखा दीजिए इस आयत में। और यहाँ जिना की बात हो रही, फाहिशा की बात नहीं हो रही। फाहिशा अलग है, जिना अलग है। आप अल्फाज को एक दूसरे इसमें के साथ सजा बताई जा रही है, लेकिन वो सजा तब दी जाएगी जब 4 गवाह मिल जाएंगे। वो जो तुमने आयत अभी पेश करी थी वही बता रही है इस बात को। यार यहाँ इसमें जिना कहा लिखा जा है, रहा उधर है फाहिशा। एक जिनाकार सेकंड सर, और सुनो, जिनाकार औरत व मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, उन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस ना खाना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान हो, ये उनको सजा देनी है 100 कोड़े की, जिनका जिना साबित हो गया हो, जिनका जिना साबित हो चुका हो। बगैर जिना साबित हुए उनको सजा नहीं दी जा सकती। अच्छा इसमें गवाह कहाँ है इस आयत में? जब आयशा के ऊपर जिना की तोहमत लगी थी तो तुम्हारे रसूल अल्लाह ने क्या कहा था? सर एक सेकंड, आप कुरान की आयतों से मत निकलो बाहर, कुरान एक की हरफ ये से मत। आयत, अरे भाई सुन, कुरान की ये आयत आयशा ही के लिए उतरी है, शान नुज़ूल है वो इसका। सर आप ऐसा करो ना, इस आयत में मुझे इस गवाह आयत का शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल बताओ क्या अल्लाह है? ने शानिजुल, आप हमारे आयत सामने आयत है, उसमें साफ लिखा है यहाँ पर रेप की जिना सजा का। कहाँ है भाई मेरे? रेप की सजा किधर है इधर? वहाँ जो सूरत निसा में जो फाहिशा कहा, वह फाहिशा अलग है, जिना अलग है। वहाँ गवाह मांगा, उधर भी फाहिशा उसको सजा दी। कहते, अरे भाई फाहिशा तुझे बता दिया मैंने, फाहिशा प्रोस्टिट्यूट, वो जो तुम्हारी हीरा मंडी में बैठी होती है ना, वो है फाहिशा पाकिस्तान के अंदर, उनको फाहिशा कहते हैं। आई बात समझ और में? ये कौन है? ये वो आम लोग हैं जो जिना कर लें, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम कर लें, पैसे के लिए नहीं, तो अपने मजे के लिए, अपने अपनी अपनी चाहत के लिए, ये वो हैं। और वो जो यहाँ जिनको गवाह फाहिशा, अरे सुना ना भाई, जिनको फाहिशा कहा गया वो पैसे लेकर के जो है प्रोस्टिट्यूशन करने वाली औरतें हैं। नहीं, गलत, मैं समझा देता हूँ। यह नहीं मत समझाओ, इतना ब्रेन नहीं है भाई वकास भाई। अच्छा देखिए, मैंने इनसे ना रेप की मेरा दिल सजा चाहता है पूछी है कुरान वकास में। को बिठा के ना थप्पड़े मारो और उसको बोलो जाग वकास जाग। साफ वहां पे साफ जो बात लिखी हुई है वो भी नहीं, वो भी गलत है। नहीं, साफ लिखी हुई है वहां पे, जो अपने कपड़े उतार दें औरतें जो निकाह से उम्मीद ना उम्मीद हो चुकी हैं, भाई उन पे कोई गुनाह नहीं है। अजीब, फिर क्या चेंज करना है उसमें? ये 2025 तक कुरान में तहरीफ कर रहे हैं लोग, अजीब मुसलमान है। और आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अली और समीर कोई नए थोड़ा ही ना है। पिछले सिलसिले के आगे के जो हैं कड़ियां हैं, और हमारे आगे की और कड़ियां आएंगी, ये मैं फिर तारीफ हमेशा करेंगे। इनको कहता हूँ, तुम लोग मुसलमान हो, तुम लोगों का काम नहीं है नए नए रूल्स बनाना। मुसद्दिक़ल लिमा, तस्दीक करनी है बस तुमने भाई मजहब की। तुम्हारा काम ही नहीं है ये कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये चीज ऐसे नहीं ये चीज वैसी, ये आपका काम ही नहीं है। आप मुसलमान हो, आपका काम सिर्फ तस्दीक करना है। और अगर आप तस्दीक नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से चीजें बना रहे हो, दैट मीन्स कि आप इस पे ईमान नहीं रखते। भाई आपका अच्छा, मर्जी है, आप इसमें ना अली भाई एक इंपॉर्टेंट बात और है। तस्दीक की जहां तक इजाजत है ना, वो भी तस्दीकुम बिलकल्ब तक है, आगे नहीं है। जी जी, वो भी नहीं है। सिर्फ अपने दिल तक तस्दीक, आगे की तस्दीक का जिम्मा भी इन लोगों का नहीं है। कि मेरा दिमाग मेरा दिल जो है फलां चीज पे मुतमईन हो गया तो बस मेरा दिल हो गया मुतमईन, बस आगे किसी चीज की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली दूसरे को मुतमईन करने की जिम्मेदारी नहीं है इनके ऊपर। इसी सूरत नूर में 4 नंबर आयत जो है उसमें कहता है कि कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आप मुमिनून, जो मुमिनीन औरत है उसको कह दी कि अपना निगाही नीची करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अगली आयत में रेप की सजा कहाँ जो है? औरत है उसको जिक्र है। रेप की सजा कहाँ आप है? जा 8 नंबर मैंने तो रेप की सजा पूछी है आपसे, रेप की सजा कहाँ है? मुझे तो इतना मैं और नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ठीक आपको फाहिशा और जिना में फर्क अगर ठीक है, आपको बस मालूम नहीं। बस 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 वो मैं आपसे जिना और फाहिशियत में फर्क पूछना नहीं बैठा हूं यहाँ पर। मेरा मुद्दा था कि आप कहते हो कि दुनिया का जो कानून है वो लोगों ने अल्लाह की किताब को पढ़ के बनाया है। आपके अल्लाह की किताब में रेप की सजा ही नहीं है। हमारे यहाँ बाकायदा वर्ड रेप है कॉन्स्टिट्यूशन में, बलात्कार है, ठीक है, मॉलेस्टेशन है, उसके बिना पर यहाँ सजा दी जाती है दुनिया के कवानीन में। और ये दुनिया के कवानीन बनाए ही इसलिए गए हैं क्योंकि उस बनाने वाले को या इन मानने वालों को या इन मुल्कों को आपके खुदा के इंसाफ पर और आपके खुदा के
नियम कानून के ऊपर कोई भरोसा नहीं था दुनिया के अंदर। समीर भाई, वकास भाई आपसे सवाल है मेरा। कुरान तो छोड़ो, कुरान में तो हमें पता चल गया अभी आपसे 2 घंटे बहस करने के बाद। वो भी देन अगेन समीर भाई की हिम्मत है कि उन्होंने 2 घंटे आपको दिए, लेकिन वो तो हमें पता चल गया 2 घंटे बात करने के बाद कि भाई कुरान में तो ऐसी कोई आयत नहीं है। कोई हदीस दिखा सकते हैं आप मुझे, किसी सहाबी को रेप की सजा मिली हो? कभी कोई हदीस दिखा सकते हैं आप मुझे? एक्चुअली समीर भाई हदीस में भी नहीं है, कुरान में तो नहीं है, चलो हदीस में भी कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिसपे किसी सहाबी को रेप की सजा मिली हो। अब मैं इस बात का जवाब कुछ इस तरीके से दूंगा अली भाई, आपकी जवाब तो नहीं ऐड करूंगा उसमें। ये कुरान में भी है और हदीस में भी है, लेकिन लेकिन सजा नहीं है। रेप हलाल है। यही तो मैं, यही मेरा भी पॉइंट यही है। या यू राइट। रेप हलाल कैसे है? वो लौंडी जिसको तुमने गुलाम बनाया है वो अपनी ख्वाहिश से तुमको नहीं देती, तुम जबरदस्ती लेते हो उससे। रेप जिना है भी वो। हलाल है भाई, रसूल अल्लाह के ऊपर जिना हलाल था। कोई औरत उन्हें अपने हवाले कर दे, हिबा कर दे तो हलाल हो। तो ये जिना नहीं है तो क्या है? इस्लाम तो इतना खुला मजहब है, इतना ब्रॉड माइंडेड मजहब है, इसमें सब अलाउ है भाई। आप लोग अजीब पता नहीं कौन से मुसलमान हो, इस्लाम को क्या आपने इतना तंग जहन मजहब बनाया हुआ है? ना इसमें सेक्स अलाउ है, ना सब अलाउ है भाई इस्लाम में। इस्लाम से ज्यादा तो कहीं अलाव है ही नहीं, हाँ, सिर्फ इस्लाम ही में अलाव है। अली भाई सही बात तो ये है। इतना ब्रॉड माइंडेड मजहब है, खुल्लम खुल्ला सेक्स करते फिरो, खुल्लम खुल्ला लड़कियां उठाते फिरो। अबे भाई ऐसा मजहब कहाँ हो सकता है दुनिया में? और फिर कोई सजा भी ना हो। मुझे पता होगा ना आपके घर में चोरी करने की कोई सजा नहीं है, तो मैं अपनी मॉरलिटी की हद पे तो रुक जाऊंगा, लेकिन लीगल मुझे कोई मसला नहीं होगा फिर उसमें करने में आपके साथ। मेरी मॉरलिटी ने इजाजत नहीं दी तो चलो मैं रुक गया, चोरी नहीं की, लेकिन जब लीगल कोई क्राइम ही नहीं है तो क्या चीज रोकेगी किसी को ये करने से? फिर असल बात तो ये है अली भाई, मॉरलिटी का टॉपिक जब आता है ना, मैं कभी मॉरलिटी के टॉपिक पे बात नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए वो हमेशा एक सब्जेक्टिव चीज है हर चीज में। लेकिन लेकिन 100% यस। लेकिन असल बात तो ये है कि आपकी अपनी मॉरलिटी आप खुद तय करें, ये भी सिर्फ इस्लाम ही इजाजत दे रहा है। पता है कैसे सर? जब वो कहता है कि तस्दीकुम बिल कल्ब, तो अपने दिल से जब तुम तस्दीक करोगे तो जो तुमको अच्छा लगेगा वो तुम करोगे। ऐसा ही है, उधर तो ज्यादा सब्जेक्टिव है। बल्कि मैं यही तो कह रहा हूँ यार, ये मुसलमान देखो ना कितनी अच्छी बात बताई आपने इस्लाम की। तो इस्लाम में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं यार, ये मुसलमान क्यों इतने जो है वो, ना इन्होंने शराबें पीनी है ना लड़कियां। भाई तुम्हारे यहाँ अलाउ है सब कुछ, शराब पीना भी अलाउ है तुम्हारे को। उधर जो तुम आयत निकाल के लाते हो लहम अल खंजीर, और लहम तो किसी भी गोश्त को लहम कहते हैं, पागल। तो आपके यहाँ सूअर भी अलाउ है, शराब भी अलाउ है, बच्चीबाजी भी अलाउ है, बच्चाबाजी भी अलाउ है। इससे खुला मजहब क्या हो सकता है दुनिया में? समीर भाई आप मुझे बताओ, इतना ब्रॉड माइंडेड मजहब। इसको इन्होंने जंजीरें डाल डाल करके ऐसा जकड़ा है बेचारे को कि वो ताकतवर से हाँ, ताकतवर भी और जो है ना। ये काम मौलवी आपको नहीं करने देता, खुद वो करता है वो, क्योंकि उसको पता है अलाउ है। मौलवी जो बच्चाबाजी करता है मदरसे में, अगर उसे पता हो कि गुनाह है तो वो ना करे भाई। उसको लगता है कि गुनाह नहीं है, उसके पास फतवे मौजूद हैं कि इससे आजिज़ी टूटती है। क्या टूटते हैं अली भाई, थोड़ा एक्सप्लेन करें उस चीज अरे वो नहीं आजिज़ी जिसका आप आती सोच है, रहे हो, जिसका आप सोच उससे रहे हो वो आजिज़ी नहीं। आती है। वो मैं खुले वर्ड में आपको बता देता हूँ। अच्छा मृत्यु भाई, उसका निचोड़ ये है कि मदरसों में जिन बच्चों की तशरीफ मारी जाती है, तशरीफ मरवाने से आजिज़ी आती है। आजीजी का ही मतलब माने मीनिंग में पूछ रहा हूं। डाउन चलो टू अर्थ यार, डाउन टू अर्थ, हम्बल। हम्बलनेस। अरे आप हंस रहे हो यार, क्या बात, ये कैसे क्या काफिर बात लोग हुई हो यार भाई, आप लोग ये यार। क्या बात हुई भाई? है भाई ये सच उनके बात यहाँ है, यही है, सही कह रहे उनके हो। यहाँ यही है, कह रहे हैं बच्चाबाजी करो, बच्चे की लो, और उसके बाद बच्चा जब बड़ा होकर मौलवी बन जाए वो अगले बच्चे की ले, और ये साइकिल चलता रहे। तो इससे मुसलमानों में आजिज़ी पैदा होती है, डाउन टू अर्थ रहते हैं मुसलमान इससे। हम्बल रहते सारी हैं। सी बात है, जिसकी आपने मारी है वो सर उठा के थोड़ी चलेगा सारी जिंदगी, डाउन टू अर्थ ही रहेगा वो। ओ भाई जेन्युइनली ये बात लिखी हुई है अली भाई, मतलब डाउन टू अर्थ रहेगा। हाँ, इनकी आपको क्या कुतुब लग रहा में है है मैं अपनी भाई। तरफ से बना रहा हूँ क्या? अरे यार वो एक वो गंगोही है, राशिद अली गंगोही, उसने भी लिखी भाई अपनी किताब में। ओ भाई, ओ भाई।
हालांकि उसने तंजिया तौर पर लिखी हैं कि ये जो काम करते हैं, हालांकि इससे आजीजी जो है वो आती है। और उसने भी लूट का वाकया भी बयान करा हुआ। अरे बड़े डंगर है ये। क्यों डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है भाई? और कुछ भी मतलब अरे वो मोरालिटी की बात नहीं कर रहा डाउन टू अर्थ, वो फिजिकल पोजीशन की बात कर रहा है बच्चे की। बच्चे की फिजिकल पोजीशन डाउन टू अर्थ होती है ना। मौलवी की भी डाउन टू अर्थ ही होती है। मौलवी की भी डाउन टू अर्थ है, सब डाउन टू अर्थ ही रहते हैं। ओ भाई खैर यार, एक बहुत सीरियस मुद्दा है, इसको हमने इतने सीरियस मुद्दे को हमने हंसी मजाक में कर लिया, लेकिन देन अगेन मैसेज तो चला गया सुनने वालों को कि जी 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 ये बहुत गलत काम है। ज़ाहिर है छोटे बच्चों का क्या कसूर है यार, वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, उन्हें माँ बाप के पास पैसे नहीं है स्कूल भेजने के, वो मदरसे भेज देते हैं उन बच्चों को, तो ज़ाहिर है इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन यही बात है, इस तरह की हरकतें ना फिर ट्रैवल करती हैं अगली जनरेशन। वो सारी मौलवी ने जब कबूल कर ही लिया है कि ओके ठीक है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ने दिल में कबूल कर ही लिया है कि ओके मेरी मारी जाएगी, तो वो बड़ा होके वो भी यही काम करेगा। वो बदले वाली भावना पैदा हो जाती है ना उसके अंदर, कहता है अच्छा मेरे साथ हुआ मैं भी करूंगा, ये बात है ना।